فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. شہ نشین پر تشریف فرما ڈپٹی چیف منسٹر جناب الحاج امجد باشا صاحب اور رہبر شریعت پیر طریقت حضرت شاہ غلام نقش بند حفیظ پاشا صاحب سجادہ نشین بارگاہ نائب رسول رحمت آباد شریف اور دیگر مشائخین اعظام، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی عزت دار پردہ نشین میرے پیارے دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ جو جلسہ، یہ عظیم الشان کل ہند نعت مشاعرہ خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کے 239واں عرس شریف کے موقع پر اس عظیم الشان کل ہند نعت مشاعرہ کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. اس مشاعرے میں ہمارے درمیان جو کہ مہمان خصوصی ہے جناب امجد باشا صاحب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر، حالانکہ آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے اس محفل میں آپ تشریف فرما ہے. اور آپ کے ساتھ ساتھ میں ہمارے آندھرا پردیش مشائخ ایسوسیشن کے جانب سے ایسوسیشن کے صدر صاحب ذکاء الدین صاحب اور دیگر مشائخین اعظام، میں ہر ایک کو اس نعتیہ مشاعرہ میں تشریف لانے پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس محفل کو آغاز کرتا ہوں. شاعر خوب کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے. ہر حمد و ثنا کا حقیقی حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے تاکہ پروردگار عالم نے ہمیں صاحب نولاد آمینہ کے لال مدینہ کے چاند سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پیدا فرمایا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور ایک احسان ہے کہ انسان کی ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز عطا فرمایا. جیسے انسان کو پہننے کے لیے لباس، کھانے کے لیے کھانا، انسان کی ہر ضروریات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو عطا فرمایا. لیکن اس سب چیزوں میں سب سے ضروری اور سب سے اہم نعمت ہدایت ہے. سب سے عظیم، سب سے ضروری نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے. جب بندہ ہدایت پاتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے، جب ہدایت نہیں ملتی گمراہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی وہ ہدایت دینے کے لیے
अल्लाह तबारक व तआला नबियों को दुनिया में भेजा है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कम्बो पेश पैगंबर को दुनिया में भेजा। हमारे आका से ये नबूवत खत्म होती है और हमारे आका आखिरी नबी है। आपके बाद कोई नबी नहीं आएंगे इस दुनिया में। नबियों के आने के बावजूद लोग गुमराह होते गए, लोग दीन इस्लाम से हटते गए, दीन इस्लाम को भूलते गए। तो अल्लाह तबारक व तआला नबियों के बाद औलिया किराम को इस दुनिया में भेजा हिदायत के लिए। ये काम, ये सिलसिला औलिया किराम अल्लाह का पैगाम लेकर इंसान दुनिया में आए और इंसान को ये हक का रास्ता बताया। उन तमाम बुजुर्गान दीन में एक ऐसे बुजुर्ग है, एक ऐसे अल्लाह के वली हमारे दरमियान में मौजूद है जिनका चर्चा, जिनका बुलंद वो बाला रुतबा ये है कि आज इस वक्त उनकी बारगाह में जो भी हाजत बन जाता है वो बामुराद होकर जाता है। जो इलाज के मसले से बारगाह नायब रसूल अम्मा जान की दरबार में आता है वो इलाज पाकर जाता है। मेरे सरकार ख्वाजा ख्वाजिगान ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार की बात मैं कह रहा हूं तो आप जरा सुभान अल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह। आप जब सुभान अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत में एक मकान बनाता है। सुभान अल्लाह। तो इस महफिल में आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला और नायब रसूल अम्मा जान आपके कहने को सुनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार ख्वाजा ख्वाजिगान ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल अम्मा जान की दरबार में जो भी हाजरीन, जो भी जियारत के लिए आता है वो बामुराद होकर जाता है। ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार की सबसे बड़ी करामत यह है, सबसे बड़ी करामत यह है कि जो शख्स, जो बंदा नायब रसूल अम्मा जान की दरबार में नेक ख्वाहिश रखकर नेक इरादे से हाजिर दरबार होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दामन को रहमतों से भर देता है। सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया में बड़े बड़े ताजदार आए, बड़े बड़े मालदार आए, ताज वाले भी आए, राज वाले भी आए। जब वो दुनिया में थे उनको सलाम, लोगों ने उनको सलाम किया, लोगों ने उनकी बादशाहत को तस्लीम की। लेकिन जब इस दुनिया से वो चले गए तो वो उनका नामो निशान ना रहा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक ना रखता हो उसका कोई निशान नहीं रहा। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाता है तो दुनिया व आखिरत में उसके चर्चे होने लगते हैं, जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लिया, आज वो हर एक के दिल पर राज कर रहे हैं। ये महफिल में आप लोग यहाँ पर नहीं आए बल्कि ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार आपको इस महफिल में आने की इजाजत दी है, तभी आप इस महफिल में आप तशरीफ लेकर आए। बेशक बेशक। दुनियादार के कब्र पर कभी दिया जलता नहीं, दुनियादार के कब्र पर कभी जो है दिया जलता नहीं, और औलिया अल्लाह के मज़ारत पर कभी दिया बुझता नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, हम सोचते हैं कि औलिया अल्लाह को इतना रुतबा, इतना मुकाम कैसे मिला, वो इतने पावरफुल कैसे हुए। हम भी तो इंसान हैं, वो भी तो इंसान है, उनमें ये पावर, ये ताकत कहां से आई। तो ये बात की मैं वजाहत करता हूं। ये बात हमको जब हम उनसे पूछते हैं तो कुरान शरीफ हमको इसकी वजाहत करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसका मतलब यह है कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना खौफ ना कोई डर है, क्योंकि वो मुत्तकी और परहेजगार है। क्या है?
मुत्तकी और परहेजगार है, इसी वजह से उनको दुनिया व आखिरत की कोई फिक्र नहीं रहती। इसलिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना मुकाम मर्तबा क्यों दिया? वो दुनिया में जब थे तो इस दुनिया को ठोकर से मार दिए, दुनिया को ठोकर पे रखते थे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह किया करते थे, फना फिल्ला थे, अल्लाह की याद में कई दिन गुजार दिए, कई लम्हात गुजार दिए। इसलिए हमको जो है चाहिए, हम दुनिया में कामयाब होना है तो हम औलिया अल्लाह की सीरत को और उनकी जिंदगी को अपना लेना चाहिए, जब ही हम इस दुनिया में कामयाब होंगे। जैसे नबियों से मोजिज़ात होते हैं, वैसे वलियों से करामत का होना बरहक है। हमारे आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सारी मौजिज़ात हुए, बहुत मौजिज़ात हुए, और उसी के साथ साथ औलिया अल्लाह से भी करामत होना बरहक है। हमारे ख्वाजागान ख्वाजा रहमतुल्लाह नायब रसूल सरकार की करामत आज मैं आपको बताता चलूं कि एक मर्तबा का वाकया है कि एक पुजारी जब सरकार नायब रसूल इस बौली का तामीरी काम कर रहे थे, मजदूर लोग काम कर रहे थे, सरकार वहां पर ठहरे हुए थे, तो एक पुजारी आया, आकर जो है सरकार को एक सोने का ढेला, जो एक पत्थर था, कई पहाड़ में रहकर तपस्या कर कर वो जो है बुत परस्ती कर कर जादू के जरिए उस पत्थर को सोना बनाकर सरकार नायब रसूल की बारगाह में आकर सरकार से कहने लगा, सरकार मैं एक तोहफा लाया हूं, उसको आपको मैं देना चाहता हूं, आप उस तोहफे को कबूल कर लीजिए। सरकार नायब रसूल उस तोहफे को लेते हैं, उस सोने के पत्थर को लिए और वहां पर जो काम करने वाला था उसको दे दिए। देखिए उसकी कई साल की मेहनत, कई साल की मशक्कत उठाकर एक सोने का पत्थर लाकर सरकार को दिया, सरकार एक काम वाले को दे दिए। उसके दिल में मलाल आया, मैं इतने साल मेहनत कर कर एक नॉर्मल पत्थर को मैं सोने का पत्थर बनाकर सरकार को दिया और सरकार उसकी कदर नहीं की है। अब सरकार औलिया अल्लाह तो जो है दिलों का हाल जानने वाले हैं, दिलों की कैफियत जानने वाले हैं, हर एक की तमन्ना जानते हैं, हर एक की मुराद जानते हैं, वो किस वजह से हाजिर दरबार हुआ है, किस मसले से आया है, कहां से आया है, वो हर एक का ख्याल करते हैं। इस पुजारी का भी ख्याल किए और पुजारी से कहने लगे कि अय पुजारी जा एक ईंट का ढेला लेकर आ, मुझे इस्तिंजा नमाज के लिए जाना है। जब वो पुजारी जाता है, ईंट के ढेले को छूता है, वो ईंट का ढेला उसको सोना बन जाए नजर आता है, दूसरा ईंट को छोटा है वो भी सोना बन जाता है, दूसरे ईंट को छूता है तो वो भी सोना बनता है। तो वो परेशान हो गया, परेशान होकर सरकार नायब रसूल की खिदमत में आया, सरकार से अर्ज करने लगा, सरकार मैं जो भी ईंट को छूता हूं तो वो सोना बन जाता है, ये क्या मामला है? सरकार नायब रसूल मुस्कुराते हैं, मुस्कुराकर उस पुजारी को अपने बाजू में रखते हैं और डोली के पानी को मुखातिब होकर पुजारी से कहते हैं कि ऐ पुजारी तू आंख बंद कर। जब सरकार नायब रसूल कहने पर वो पुजारी आंख बंद करता है, फिर सरकार नायब रसूल उस पुजारी से कहते हैं कि पुजारी तू आंख खोल। जब वो पुजारी आंख खोलता है तो उसको बॉडी का सारा पानी सोना नजर आने लगता है। तो सरकार नायब रसूल उस वक्त उस पुजारी से कहे कि ऐ पुजारी तू खुदा का हो जा, ऐ पुजारी तू खुदा का हो जा, सारी खुदाई तेरी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुदा का होता है सारी खुदाई उसकी हो जाती है। ये औलिया अल्लाह का मुकाम व मर्तबा है। हमको चाहिए कि हम आस्ताने से जुड़े, आस्ताने से रहें, आस्तानों के सोहबत में रहें, इसमें हमारी भलाई, इसमें हमारी कामयाबी है। और आखिरी इस शेर के साथ मैं अपने तकरीर को यहीं पर खत्म करता हूं कि ना मुरादों को तुमसे मुराद मिली, ना मुरादों को तुमसे मुराद मिली, हो वली खुदा नायब मुस्तफा। सुभान अल्लाह। ना मुरादों को तुमसे मुराद मिली, हो वली खुदा नायब मुस्तफा। लाखों बीमार चौखट पर आए तेरी, लाखों बीमार चौखट पर आए तेरी, पाते हैं सब शिफा नायब मुस्तफा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।